you, Lord. Praise the Lord. Amen. Yes. So last Sunday I told I will be teaching maybe a series about the life and the teachings of Christ. और पिछले रविवार को मैंने बताया था कि मैं एक श्रृंखला सिखाना चाहता हूँ यीशु मसीह का जीवन और उनकी सेवकाई के ऊपर। So last Sunday we heard from the prayers of Jesus. पिछले रविवार को हमने यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के बारे में सीखा। Today I want to share with you about the miracles of Jesus. आज मैं यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर मैं जो है बात करना चाहता हूँ। Jesus was a woodworker for 18 years. और यीशु मसीह ने जो है बढ़ई का काम किया, लकड़ी का काम किया 18 साल। And he became a wonder worker for 3.5 years. और वो 3.5 साल तक चिन्ह चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति बना। And we know that Jesus performed many miracles. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। And John goes to the extent of saying, if all the miracles would have been written, the world cannot contain the books. और यूहन्ना ने इस प्रकार से कहा कि यदि यीशु ने जितने चमत्कार किए उसको यदि लिखा जाए तो दुनिया में जितनी कागज है वो भी कम पड़ता है। The world will not contain the books. और पूरे दुनिया जो है वो किताबों को संभाल नहीं पाते। Because we know those days there was not printing machine. उन दिनों में जो है प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करता था। So sure it is not literal but it is figurative. Means it will be too much. वो शाब्दिक तौर से नहीं लेना है लेकिन वो उन्होंने इतने बड़े-बड़े चमत्कार किए उसके बारे में बताया। So in John chapter 20 and verse 30 और यूहन्ना 20 का उसका 30 में and also John 21 verse 25 और यूहन्ना 21 का 25 में so he speaks about a lot of things that Jesus did. और यीशु मसीह ने जो बड़े-बड़े काम किए उसके बहुत सारी बातों को बताया। Okay, so then we also you have to understand it says the things that Jesus did. और वो बातें जो यीशु मसीह ने किए हैं। It does not say Jesus said. ये नहीं कि यीशु मसीह ने जो कहा है। Because there are some churches which say many things Jesus said which are not written. और कई दूसरी कलीसिया के लोग कहते हैं यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है वो नहीं लिखा है करके कहते हैं। Okay, so that's why we are adding many things to what the Bible says. इसीलिए कई लोग उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं बाइबल के साथ-साथ। Okay, so now I just want to share with you the miracles of Jesus. अब मैं यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। Okay, you tell me some of the miracles. कुछ चमत्कार आप बता सकते हैं। Walking on water, पानी के ऊपर चलना, making water into wine, और पानी को दाखरस में बदलना, raising the dead, मरे हुओं को जिलाना, multiplying the bread and the fish. रोटी और मछली को जो है गुणात्मक रीति से बढ़ाना। Okay, anybody knows how many miracles is explained in the scriptures? कोई बता सकता है क्या कि यीशु मसीह के चमत्कारों का विवरण जो है बाइबल में हम देखते हैं? How many miracles? कितने चमत्कार? 37. Yeah, 36, 37. Very good. 36 technically. Some people say 37, but I have searched. I could find only 36. मैंने ढूंढा 36 मिले। Okay, why did Jesus perform miracles? यीशु मसीह ने क्यों चमत्कार किए थे? Tell me. Why did Jesus perform miracles? क्या कारण है चमत्कार करने का? Because of his compassion. Very good. Okay. उसकी अनुकंपा या दया के कारण। दया already आ गया उसकी उधर. Yes, because he wanted to prove that he is God, Son of God. ये साबित करना चाह रहे थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। Okay, again. और कोई? Okay, very good. Okay, the first reason is to fulfill the prophecies or fulfill the scriptures. पहला जो कारण वो ये है कि भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है उसकी पूर्णता के लिए। If you read Matthew chapter 8 verses 16 and 17. मत्ती 8 का 16 और 17 यदि पढ़ेंगे। It says when evening had come, they brought to him many
who were demon possessed, and he cast out the spirits with the word and healed all who were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Okay, so fulfill the prophecies of the scriptures, Jesus performed miracles. तो जो भविष्यवाणियां हुई थी उसकी पूर्णता के लिए यीशु मसीह ने वो चमत्कार किए। And the second reason is the miracles were a proof that Jesus is God. The deity of Jesus is proved by his miracles. और यीशु मसीह ने चमत्कार इसलिए या आश्चर्यकर्म इसलिए भी किए क्योंकि उसके ईश्वरत्व को उन्होंने साबित किया था। Yes, because people will not understand that Jesus is God if Jesus would not perform those miracles. यदि यीशु मसीह वो आश्चर्यकर्म या चमत्कार नहीं करे तो लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि वो ईश्वर है करके। And the third thing is the miracles of our Lord were manifestation of his love and compassion. और तीसरा जो कारण है वो है यीशु मसीह की दया और उसके प्रेम का प्रकटीकरण जो है उसके द्वारा उसने किया। You may remember that Greek word is splagchnizomai, which speaks about compassion. और जो अनुकंपा जो शब्द है वो यूनानी शब्द से जो बताया गया है splagchnizomai. And I want to tell you this splagchnizomai, this word comes only 12 times in the New Testament. और splagchnizomai जो शब्द है वो 12 बार नए नियम में आया है। ये यूनानी शब्द है And it comes only in Matthew, Mark and Luke's gospel. और ये मत्ती, मरकुस और लूका सुसमाचार में ही बताया गया है। And either it is speaking about Jesus or it came out of the mouth of Jesus. या तो ये यीशु के बारे में बताया गया है या यीशु के मुख से निकले हुए शब्द को बताया है। Okay, when Jesus shared 3 parables, he used this word splagchnizomai. और यीशु ने 3 दृष्टांत जब बताए थे तो ये splagchnizomai करके जो शब्द है उसका उच्चारण हुआ था। Okay, Good Samaritan, prodigal son, and also the forgiving servant. और अच्छा चरवाहे के बारे में और सामरी व्यक्ति के बारे में और जो है उड़ाऊ पुत्र के समय और वो अच्छे सेवक के जो दृष्टांत बताया था। And again it speaks about Jesus performing miracles because he was moved with compassion. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने लोगों को देखकर तरस खाया, अनुकंपा दिखाया और उस प्रकार से चमत्कार किए। Actually this splagchnizomai, that word actually means it means your innermost bowels are longing. Everything that you have and everything that you are, they are all longing to help the person on whom you have compassion. और ये splagchnizomai करके जो शब्द है वो इस बात को दर्शाता है कि आपके पेट के अंदर की गहरी जो अंदरूनी जो भाग है वो लोगों की जरूरत के लिए वो लालसा रख रहा है और उस बात को वो प्रदर्शित करता है। So whatever you are having and whatever you are, everything is working towards blessing that person upon whom आपके you पास have जो compassion. कुछ भी है और आप जो कुछ भी आप बताते हैं वो सब जो है इस लालसा में कि लोगों की आप जो है मदद कर सके। So that's why when Jesus saw the Nain's widow weeping and crying, Jesus was moved with compassion and raised her dead son. इसीलिए हम देखते हैं वो नाइन की विधवा जो है वो रो रही थी, उसके जो एकलौता बेटा वो मर गया था, उसके ऊपर अनुकंपा दिखाकर यीशु ने कैसे चमत्कार किया। And then the fourth reason why Jesus performed miracles is चौथा कारण वो यीशु ने क्यों चमत्कार दिखाया वो ये है, it is for our purpose. वो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए। Because we read the words, Jesus said, truly I say unto you, whoever believes in me will do the things that I have done, and greater things than this shall he do also, because
I go to my Father. और- Chapter 14 of John and verse 12. और यस मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Okay, actually here the word is the singular word. He who believes in me. Not all of us we believe, it is he. Everyone individually we will be able to do the things that Jesus did and greater things than what Jesus did. यूहन्ना 14:12 वो सभी के लिए नहीं है, केवल उन्हीं के लिए है, उन व्यक्तियों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु ने जो काम किए उससे भी बढ़कर वो चमत्कार करेंगे। Every individual believer can be used of God mightily. हर एक व्यक्तिगत रीति से जो विश्वासी है वो परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थ से उपयोगी हो सकता Means है। God wants to use every one of us, whoever is believing upon Jesus. परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है यदि हम अपने आप को उपलब्ध कराएं। Amen. Amen. Do you believe that God can use you? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? Tell God can use me. हाँ, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. Hallelujah. So that's why Jesus performed all these miracles. इन कारणवश जो है यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म या चमत्कार किए। Even in Mark chapter 16 verses 17 and 18 we read, मरकुस 16 के 17 और 18 में हम पढ़ते हैं। Jesus said, "These signs shall follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak in new tongues. They will take up serpents. Even if they take anything harmful, it will not harm them. And they will lay hands upon the sick, and they shall recover." जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। 17 और 18। 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Yes, we read Mark chapter 16 and verse 20. मरकुस 16 के 20 में हम देखते हैं। And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। And also if you read Matthew chapter 10 and verse 8, मत्ती 10 का 8 भी अगर हम पढ़े उसमें ऐसा लिखा है। Jesus told his disciples like this, यीशु ने अपने चेलों से इस प्रकार से कहा, "Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, freely you have received, freely give." बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। Hallelujah. Amen. So God is telling you and me that we have to go and cleanse the lepers, heal the sick and raise the dead. परमेश्वर हमें ये आदेश देता है कि हमको जाना है, बीमारों को चंगा करना है, कोढ़ियों को ठीक करना है और मरे हुओं को जिलाना है। How many of us have cast out demons? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला है? If I ask, I don't know how many hands will go. मैं अगर पूछूं तो कितने हाथ ऊंचे होंगे? How many of you can have testimonies that you prayed for people and people got healed? कितने लोगों के पास में ऐसी गवाहियां हैं कि आपने प्रार्थना किया और बीमार चंगा हो गया? So if God wants to encourage you and me by the miracles that He did when He was on the earth. और प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको ये प्रोत्साहन देना चाहता है कि वो जब इस पृथ्वी में था उसने जो आश्चर्य कर्म और चमत्कार किए वो हमारे द्वारा भी करवाए। So the miracles that are written in the scriptures are not just written like that. और आश्चर्य कर्म जो वचन में लिखे हुए हैं वो केवल ऐसे ही लिखे नहीं हैं। But God has a purpose that you and I should also exercise our faith and see the manifestation of God's power. परमेश्वर की एक योजना है, एक उद्देश्य है ताकि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और परमेश्वर के नाम से जो है हम चंगाइयां और जो है चमत्कार हम कर सकें। Even if you read Romans chapter 15 and verse 18, यदि आप रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसका 18 भी अगर आप पढ़ें, we will read the 19th verse. उसके 19 आयत को But पढ़ेंगे। you go home and read from verse 18 onwards. आप घर जाकर 18 से आप जरूर पढ़ें। Paul is telling about his ministries. He says, "In mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God,
so that from Jerusalem and round about to Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार So he says God did mighty wonders and miracles through him. पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। We also will read one more verse. एक और आयत हम पढ़ेंगे, Hebrews chapter 2 verses 3 and 4. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 3 और 4 आयत। It says, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will. तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Yes, so means Jesus, here the word is actually saying that people cannot give excuse to God saying we never knew God. और यहाँ ये वचन हमको इस बात को बताता है कि लोग ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं जाना या देखा। Because word has been confirmed through signs, wonders, healings and the gifts of the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने दृढ़ किया है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा और आश्चर्य कर्मों के द्वारा। It was not that the miracle working power was given only to the first century disciples. ये ऐसा नहीं है कि केवल पहली सदी की कलीसिया के जो अगुवे हैं या प्रेरित है केवल उन्हीं को ये चमत्कार करने का ये वरदान दिया। But it is given to the church which will be on the face of this earth till the coming of the Lord. यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक कलीसिया को ये जो है अधिकार और ये वरदान दिए हुए हैं, तो जब तक उसका आगमन ना हो तब तक उसका इस्तेमाल करें। But the church forgot the gifts of the Holy Spirit. लेकिन कलीसिया भूल गई कि जो पवित्र आत्मा के वरदान है उसको। That the church members think only the pastors and great preachers have those gifts. और कलीसिया इस बात को ऐसा सोचती है कि केवल पासवान या बड़े-बड़े जो प्रचारक हैं उन्हीं को ये वरदान दिए गए। But then when we study the scriptures, all the gifts are available to every believer. Even if he is small, a new believer, even to the old believer, God gives these gifts. लेकिन अगर वचन को अच्छे से हम अगर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि चाहे वो नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह करने के लिए जो है वरदान दिए हैं। You may be an ordinary person, आप एक साधारण व्यक्ति होंगे, but then God can use you extraordinarily. लेकिन परमेश्वर असाधारण रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। That's why even when Peter and John were preaching, they said they are uneducated and ordinary men. और जब पतरस और यूहन्ना जब प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने इस प्रकार से कहा, ये तो साधारण व्यक्ति है, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। Okay, and then so these are the 4 reasons I want to share with you why Jesus performed the miracles. ये 4 कारण मैंने जो बताया कि यीशु मसीह ने क्यों आश्चर्य कर्म किए थे। Okay, today my main aim will be that every one of us, when we go from here, let us pray that God will use every one of us in performing healings and miracles in our places of work, in our places of living, even in our travels, marketplaces. May God use everyone. और आज मेरा मुख्य जो बिंदु रहेगा और जिस पे मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु इन वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करे, चाहे आप काम करने के स्थान में हो या बाजार में जाएं, यात्रा करें, कहीं पर भी हो, परमेश्वर आपके द्वारा आश्चर्य कर्मों को करेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Because I have experienced, even before I was baptized,
with the Holy Spirit. Even before I was baptized in the water, I accepted Jesus and God began to use me. और मैं अपने जीवन के अनुभव से ये बता सकता हूँ, मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक या जो है बपतिस्मा लेने से पहले ही यीशु को जब ग्रहण किया, तभी से प्रभु इस्तेमाल करना शुरू I किया। have seen healings and miracles taking place. मैंने देखा चंगाइयाँ और जो है चमत्कार कैसे प्रभु कर रहा है। So God can use every one of us. प्रभु हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। Maybe until today you might have hidden this blessing under your own various things. हो सकता है अपने इन वरदानों को जो है छुपा कर रखा हो, लेकिन प्रभु जो है उनको आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेगा। So stir up the gifts that God has given you. जो वरदान आपको मिले हैं उसको ज्वलंत करे। And then we see there was many mass healings that took place through Jesus. देखते हैं यीशु की सेवकाई के द्वारा बड़े ही सामूहिक तौर पर चंगाइयां हुई हैं करके देखते हैं। We know maybe hundreds, maybe thousands of people were healed. सैकड़ों हजारों लोगों ने चंगाइयां पाई हैं। We are not going to read all those things. There are at least 5 events in the book of Matthew. और हम उन सब भागों को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मत्ती ने 5 जगह पर इस बात को दर्शाया है। And 3 times in Mark and 3 times in Luke, we read about all different kinds of people getting healed and the evil spirits cast out. मरकुस भी 3 बार और लूका भी 3 बार इस बात को दर्शाता है, यीशु ने कैसे चंगाइयां दी और कैसे दुष्ट आत्मा को निकाला। So today I want to bring to your notice an analysis of the different miracles of Jesus. और आज में जो है यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म हुए हैं उसका जो है एक अवलोकन हम करेंगे। And as I was preparing this message, I was so much surprised when I saw some of those things. और जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, बहुत ही अचंभे की कई बातों को मैंने सीखा है। Okay, there are only 36 miracles of Jesus which are explained in the 4 Gospels. और चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के 36 चमत्कार या आश्चर्य कर्मों के बारे में जिक्र किया गया We have to understand, Jesus would have done maybe 36 lakhs, 36,000 miracles. यीशु मसीह 36,000 या 36 लाख भी चमत्कार कर सकते थे। He would have done. उन्होंने किया, कर सकते थे। Okay, but then it is not written. लेकिन वो लिखे नहीं है। Otherwise, we will not be able to carry the Bible to the नहीं church. तो हम बाइबल लेकर कभी कलीसिया में आ नहीं सकते। It would have been too big. बहुत बड़ा जो है एक पुस्तक बन जाएगा। And I wanted to give you that's why I have analysis. Anybody, okay, no need. So there are, Jesus served the Lord for 3.5 years. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा दिया। In the first year, only 7 of his miracles are explained in the scriptures. पहले साल में यीशु मसीह के जो है 7 miracles. 7 चमत्कार बताए हैं। And then the second year, 12 of his miracles are written. और दूसरे साल में 12 चमत्कारों के बारे में बताया है। Third year, 5 miracles are written. तीसरे साल की में जो सेवकाई की उसमें 5 चमत्कारों के बारे में बताया है। And in the 4th year, 12 of his miracles are written. और चौथे साल में जो प्रवेश किया तो 12 चमत्कार का बताया है। So you can just imagine what Jesus would have done, only 12 miracles. क्या तो आप थोड़ा कल्पना कर सकते हैं क्या यीशु मसीह ने आखिरी समय में केवल 12 ही चमत्कार किए क्या? Because maybe in one day Jesus would have done hundreds and hundreds of miracles. एक ही दिन में सैकड़ों चमत्कार हुए होंगे। I remember many years back, Brother Sarkar is here. We went to one Ambedkar Nagar in New Market area. और भाई सरकार यहाँ पर है, एक बार जो है हम अम्बेडकर नगर हम गए थे। Okay, we were about 5-6 people. Means me, Dolly, Sarkar Mother, and I think sister was there. And Sardarji and his wife. There was one Sardarji in our church, and his wife. 5-6 लोग हम मिलकर गए थे, सरदार जी थे उनकी पत्नी के साथ। And we went and preached. At least 200 miracles happened that day. और हमने वहां जाकर प्रचार किया, कम से कम 200 लोगों के जीवन में वो आशीष रहा, आश्चर्य कर्म हुए। The first miracle was a man was blind for 6 years. He began to see. पहला चमत्कार ये था कि एक व्यक्ति जो अंधा था वो देखने लगा। And then the next miracle was a man was dumb. He began to speak. और दूसरा जो चमत्कार था एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता था, मूक था, और जो बोल नहीं सकता था वो बोलने लगा। So like that there were outstanding healings, at least 200 that took place in that day. उस एक दिन के अंदर कम से कम 200 ऐसे आश्चर्य कर्म हुए जो बिल्कुल ही विभिन्न है, So साधारण नहीं है। how many miracles Jesus would have made?
it. तो यीशु मसीह ने कितने किए होंगे थोड़ा कल्पना कर सकते हैं। Okay, just for your information I'm giving. So today there are a lot of healing preachers. So many people are getting healed through them. आज जस्ट ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज बड़े बड़े प्रचारक हैं जो चंगाई सभा को लेते हैं और बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। But just imagine every one of us here, sitting here, we are, through us, God is performing miracles. What will be the number? आप थोड़ा सा कल्पना करें, यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के द्वारा यदि आश्चर्य कर्म परमेश्वर अगर करने लगे तो कितनी गिनती बढ़ जाएगी और कितना बड़ा काम होगा। So there are only 3 miracles that are only written in. There are actually 22 miracles written in Matthew's Gospel. Only 3 are special to Matthew's Gospel. और मत्ती रचित सुसमाचार में 22 आश्चर्य कर्म लिखे हैं, लेकिन उसमें 3 जो है विशेष है। And in Mark there are 19 miracles written. 3 are special to Mark. और मरकुस में 19 चमत्कार या आश्चर्य कर्म बताए, उसमें 3 विशेष है चमत्कार। And then in the book of Luke 19 miracles are written. 5 are special to Luke. और लूका रचित सुसमाचार में 19 जो है आश्चर्य कर्म बताए, उसमें 5 विशेष है। And in the book of John there are 9 miracles written. 6 are only written in the book of John. और जो है यूहन्ना ने 9 आश्चर्य कर्म के बारे में बताया है। 6 हम चमत्कार ऐसे देखते हैं जो केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही पाते हैं। Okay, we know the miracles that are written in John's Gospel are not written in other scriptures. हम जानते हैं कि यूहन्ना ने जो चमत्कार लिखे हैं वो दूसरे सुसमाचारों में हम नहीं पाते The हैं। first miracle and the last miracle of Jesus are written only in John. और पहला जो आश्चर्य कर्म है और आखिरी जो आश्चर्य कर्म है वो केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही लिखा है। Raising Lazarus from death is written only in John. और जो है लाजर को मरे हुए में से जिलाया वो केवल यूहन्ना में ही दिया है। So like that we can see there are special miracles in different gospels. ऐसे विशेष आश्चर्य कर्मों को हम यूहन्ना में हम देखते हैं। So today I want to share with you आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ 7 different kinds of miracles Jesus did. 7 अलग-अलग प्रकार के आश्चर्य कर्मों को जो यीशु ने किए थे। Okay, the first is Jesus performed the healings. और पहला जो है यीशु ने जो चंगाइयां दी हैं। Okay, these all I want to share because I want you to do all these things. और ये मैं इसलिए बांट रहा हूं ताकि आप भी अपने जीवन में अपनी सेवकाइयों को कर So सकें। healing should take place through you. और चंगाइयां आपके द्वारा भी होना है। Jesus said, "You shall lay hands upon the sick and they shall recover." यीशु ने क्या कहा? तुम रोगियों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे और वो चंगाई को प्राप्त So करेंगे। today God wants to heal people through you, आज me. लोगों को चंगाई देना चाहता है, आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर वो चंगाई करवाना चाहता है। Amen. Amen. Today we know there are so many diseases which cannot be treated by medicine. आज हम देखते हैं ऐसी कई बीमारियां हैं जो दवाइयों से जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। So even doctors say ये दवाई से नहीं होगा, दुआ करो करके, है ना? So we know that only Jesus, God, can perform healings for such sicknesses. हम जानते हैं जब डॉक्टर भी जवाब देता है तो केवल परमेश्वर ही वहां पर वो चंगाई देकर उनको उठा सकता है। And the second group of miracles that Jesus did was creative miracles. और जो है दूसरे प्रकार का जो आश्चर्य कर्म है वो है रचनात्मक रीति से करने वाले These चमत्कार। blind people, they don't, that means they don't have retina, whatever it is. They don't know any of those things, but Jesus created those things for them. कहने का मतलब यह है कि जो अंधा है उसके आंखों में जो है पुतली भी नहीं है, आंख की पुतली भी नहीं है, वो सब जो है नया रचना जैसे नई सृष्टि परमेश्वर ने सृजा, ऐसे चमत्कार। Jesus healing deaf and dumb. यीशु ने जो है गूंगे और बहरों को चंगा किया। And Malchus' ear was cut off. Jesus could attach it. और हम देखते हैं मालकस करके एक जो दास है उसका कान काट दिया था पतरस ने, और उसको कैसे यीशु ने जो है लगा दिया और चंगाई दी। And the third group of healing miracles that took place was Jesus cast out demons. तीसरे प्रकार का जो आश्चर्य कर्म है वो यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। Okay, we know only Jesus can deliver people from demon possession. हम जानते हैं केवल यीशु ही लोगों को दुष्ट आत्मा से छुड़ा सकता And है। then the fourth blessing was, fourth type of miracle that Jesus did was multiplying food or providing or feeding
चौथे प्रकार का आश्चर्य कर्म ये था, यीशु ने लोगों को खिलाया या उनको जो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको दिया। Like water into wine. जैसे पानी को दाखरस में बदला। 5 loaves of bread and 2 fishes to more than 5,000 men apart from women and children. 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुषों से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। Throughout the night, Peter could not catch any fish. और पूरी रात भर मेहनत किया, पतरस ने मछली नहीं पकड़ा। But then when Jesus said, and they put the net, they could get so much of fish to fill 2 boats. लेकिन जब यीशु ने जब कहा, उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां पकड़ी कि 2 नावें भर गई। And the 5th kind of miracles that Jesus did was, और 5वें प्रकार का जो आश्चर्य कर्म है जो यीशु ने किया वो है protecting people. वो है लोगों को सुरक्षा प्रदान दिया। You know, there was a storm. आप जानते हैं आंधी तूफान चला। The disciples were about to be drowned. और चेले लोग डूबने के स्तर पर पहुंच गए And थे। they said, Lord, we are perishing, don't you care? और चेलों ने शिकायत भी किया कि प्रभु हम डूब रहे हैं, तू हमारी परवाह नहीं कर रहा। Jesus rebuked the wind and the waves. यीशु ने लहरों को जो है थमने का आदेश दिया और उनको बचाया। And then the 6th kind of miracle was he cursed a tree, and the tree was cursed. और जो है हम देखते हैं छठा जो प्रकार का आश्चर्य कर्म है वो एक पेड़ को शापित किया, अंजीर के पेड़ को। And the 7th is raising the dead. और 7वां है वो मरे हुओं को जिलाया। Jesus raised Jairus' daughter who was just then dead. और याईर की बेटी जो मर गई थी उसको वो यीशु ने जिलाया। Okay, she was just then dead. She was dead for maybe few minutes or वो maybe हो an सकता है hour. 2 मिनट पहले वो मरी होगी, वो उस समय उसको जिलाया। Maybe half an hour because Jesus was walking. Maybe half an hour, 1 hour. हो सकता है आधा घंटा या थोड़ा और समय हो सकता है यीशु के चलते उनके घर पहुंचने में। And Nain's widow's son might have been dead for few hours. और नाइन विधवा का जो बेटा है वो कुछ घंटों से ज्यादा जो है वो मरा हुआ। Why did Jesus raise Lazarus after 4 days? यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के बाद क्यों जिलाया? Anybody knows? कोई बता सकता है? Yes, very good. The Jews' mindset says that when a man dies for 3 days, man or woman, for 3 days, the spirit will be moving around that dead body. यहूदी लोगों की मानसिकता इस प्रकार से थी, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो 3 दिन तक जो है उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है आसपास में। Okay, to enter into him again. ताकि उसके अंदर वापस घुसे। So that's why Jesus waited for 3 days, and on the 4 days, and he went and raised him up after 4 days, so that people will know that Jesus is true. और जो है इसीलिए यीशु मसीह जो है 4 दिन तक रुके और उसके बाद में जाकर जो है यीशु ने वो लाजर को जिलाया ताकि लोग जान पाए कि यीशु सच्चा है। So you also pray, and my prayer is that all of us, God will use in all these 7 different kinds of 7 different kinds of miracles. और आप भी ये प्रार्थना करें कि आपके और मेरे जीवन के द्वारा इस 7 प्रकार के जो आश्चर्य कर्म हैं वो होने पाए, उसके लिए भी प्रार्थना करें। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So do you believe that God can do through you? क्या आप ये विश्वास करेंगे कि प्रभु आपके द्वारा भी ऐसे आश्चर्य कर्म करेगा? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Maybe I will just share a couple of things. There was an illiterate woman. मैं कुछ बातों का आपको बताऊंगा। एक अशिक्षित एक जो है महिला थी, And she got saved. उनका उद्धार हुआ। And after she got saved, God gave her the understanding, knowledge to read her mother tongue Bible. और जो है वो बहन का उद्धार होने के बाद में उनको जो है वो समझ प्राप्त हुई और अपनी मातृभाषा में बाइबल पढ़ सकती थी। And as she was reading, she was all the time praying to God, God, why did you save me? और वो हमेशा ये प्रार्थना करती थी, प्रभु तूने क्यों मुझे उद्धार दिया, आप बताएं। And then when she came to Mark chapter 16, verses 17 and 18, they will lay hands upon the sick and they shall recover. और जब वो मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 17 और 18 आयत में जब वो पढ़ी उसको कि जब लोगों के ऊपर तुम हाथ रखकर प्रार्थना करोगे और वो चंगाई को प्राप्त करेंगे। So what she used to do was, तो वो क्या करती थी? she used to go to the villages वो गांवों में जाती थी and ask people, is there anybody sick
here? वो लोगों से पूछती थी यहाँ कोई बीमार है क्या? Every village there will be sick people. और हर गांव में कोई ना कोई तो बीमार होगा। And then she will read something from the passage of the Bible. और उसके बाद वो बाइबल से कुछ भाग को पढ़ती। She used to lay hands upon the sick. उसके बाद बीमारों के ऊपर वो हाथ रखकर प्रार्थना करती। And it is said that on whomsoever she laid her hands, whatever type of sicknesses, diseases they were in, everyone 100% they were healed. इस प्रकार से कहा जाता है कि उस बहन ने जिस किसी के ऊपर कोई सी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर एक रोग से लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया और लोगों ने छुटकारा पाया। And when I was in Bihar, जब मैं बिहार में था, I met one general manager. There was one Dalmia Nagar cement factory, and there was a general manager. और मैं जब बिहार में था तो वहाँ दालमिया नगर में एक सीमेंट फैक्ट्री में एक जनरल मैनेजर थे। We went to meet him. हम उनसे मिलने गए to hear his testimonies. ताकि हम उनकी गवाहियों को सुन सकें। He was a Brahmin. वो एक ब्राह्मण थे। And he did not openly declare that he is a believer in Christ. वो खुलकर नहीं बोलते थे कि वो एक मसीह का एक विश्वासी है। But whoever becomes sick in the factory, he used to pray and everyone used to get healed. लेकिन जो कोई भी उस फैक्ट्री में उनके जो है वो बीमार होते थे, वो उनके लिए प्रार्थना करते थे और वो चंगाई को प्राप्त करते थे। And he said how it started. और उन्होंने बताया कैसे ये शुरू किया उन्होंने। When he was a student in the school, जब वो स्कूल में एक विद्यार्थी थे, he was in the Ramakrishna mission. So in that, one of the teachers taught him, if there is no help from anywhere, call upon Jesus, he will help you. रामकृष्ण मिशन के एक स्कूल में वो पढ़ते थे, तो उन्होंने इस बात को सुना कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है और कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है, तो आप पुकारो, यीशु मदद करेगा। And so he was studying in Switzerland. और फिर वो स्विट्जरलैंड में पढ़ने गए। And that year, he says, was the coldest year of 20th century. और I think it was 1960, I think 62, 63. और 20वीं शताब्दी का जो है वो सबसे ठंडा एक समय था, वो वहां जब पढ़ने गए थे। And actually what happened was his heating system failed. और उनके घर में जो गर्म करने का जो सिस्टम था वो सब जो है वो नाकाम हो गया। And everything was becoming ice. और सब जो है वो बर्फ जैसे बनने लगा। He tried to get out of his house so that he can go to somebody's house where he can have the heating system. और जो है वो अपने घर से बाहर निकलकर किसी दूसरे के घर में जाना चाह रहे थे ताकि उनको कुछ गर्माहट मिल सके। But when he opened the door was jammed because of snow. और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश किया, लेकिन बर्फ जमने के कारण वो दरवाजा खोल नहीं पाए। And he said, I was freezing to death. वो कह रहा था मैं बर्फ जमने के समान होकर मैं मृत्यु की ओर जा रहा था, ऐसा अनुभव कर रहा था। Then I remembered that teacher's words. उस समय उन्होंने जो टीचर ने कहा था उस बात को उन्होंने स्मरण किया। And he said, Jesus, help me. उन्होंने चिल्लाया कि यीशु तू हमारी मदद कर। And he says, when he woke up, और फिर उन्होंने कहा कि जब वो उठा, he was fully sweating. और वो जो है पसीने से तरबतर हो गया। And there was fire in the fireplace. और जहां आग जलाते हैं वो तापने के लिए वहां पर आग जल रहा था। And the entire house was warm. और पूरा घर जो है वो गर्माहट से भर गया। There was no chance anybody could have done except Jesus. और उसने कहा ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, ये केवल यीशु ही कर सकता है। So you are the only Jesus in your places of work, in your places of living. आपके काम करने के स्थान में आप जहां रहते हैं वहां आप एक यीशु हैं, ये मान के चले। You are the Bible in that place. आप उस जगह के एक परमेश्वर के वचन हैं। So you can exercise your faith and pray for the people. आप अपने विश्वास को जो है वहां पर साबित कर सकते हैं और परमेश्वर के जो है प्रार्थना करके वो अभ्यास भी कर सकते हैं। 7 kinds of miracles Jesus performed. 7 अलग-अलग प्रकार के आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किए। The next thing is where did Jesus perform the miracles? Where did Jesus perform the miracles? दूसरी बात जो है यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म कहां पर किए थे? Where did Jesus do? कहां किए थे ये आश्चर्य कर्म? In the Jerusalem temple? यरूशलेम के आराधनालय में?
Where did Jesus do all these miracles? ये सब आश्चर्य कर्म कहाँ किए थे? Huh? Okay, lake, and then in 7 different places Jesus performed the miracles. 7 अलग-अलग जगहों में यीशु मसीह ने ये चमत्कार किए थे। One is houses. He performed the miracles in the houses. पहला यीशु ने घरों के अंदर जो है चमत्कार किए। What is the first miracle of Jesus? यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार किया वो क्या था? Water into wine. Where did it happen? पानी को दाखरस में बदला। कहाँ पर ये किया? It happened in a marriage house. वो जिस घर में जो है विवाह हो रहा है वहां पर। So he performed miracle in the marriage house as well as in the funeral house. और विवाह होने वाले घर में और जहां पर जो है मरकर जो है अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर किया। Okay, in Jairus' house. याईर के घर में। Okay, so Jesus was performing miracles in the houses. यीशु मसीह ने घरों में चमत्कार किया। So you also, when you are going to your friend's house, colleague's house, pray that God would perform healings and miracles. आप भी अपने मित्र या अपने सहकर्मी के यहाँ पे जब जाएंगे तो वहां पर आप भी चमत्कार कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because every family has got problems. क्योंकि हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। Every family has got something or some lack, some need or some lack. हर परिवार में कुछ न कुछ जरूरत या कुछ कमियां रहती हैं। Okay, there are at least 7 miracles that Jesus did in the houses. और कम से कम 7 ऐसे आश्चर्य कर्म हैं जो घरों के अंदर यीशु ने किए। Okay, the second place where Jesus performed the miracles. दूसरा जो जगह जहां पर यीशु मसीह ने चमत्कार या आश्चर्य कर्म किया, Roadside. वो जो है मार्ग के किनारे, Means we can say travel. इसका मतलब या ये हम कह सकते हैं यात्राओं के दौरान। Because those days people did not have cars and bikes. और उस समय लोगों के पास में कार या बाइक नहीं था। People used to walk and walk and walk. और लोग चलते रहते थे, यात्रा करते थे। And you may remember, anybody remembers how many kilometers or miles Jesus would have walked during his 33.5 years of living? और यीशु मसीह ये पृथ्वी में 33.5 साल जो रहे, उन्होंने कितने किलोमीटर या मील उन्होंने यात्रा किया होगा, कोई बता सकता है? I once shared. मैंने पहले एक बार बताया था। Okay, in the first 30 years, पहले 30 साल, because every Jewish male should go to Jerusalem temple thrice a year. हर एक यहूदी पुरुष को जो है 3 बार एक साल में यरूशलेम के मंदिर में जाना होता है। So that would have been 3,125 miles. वो 3,125 मील यात्रा किया होगा। And during his 3.5 years of ministry, और 3.5 साल की जो सेवा यीशु ने दिया है, even if you have an average of 20 miles per day, और यदि एक जो है एवरेज में अगर देखें 20 मील अगर एक दिन भी यात्रा करते हैं, at least 1,000 days Jesus was doing his ministry. 1000 दिन कम से कम यीशु ने जो है सेवा किया। Apart from you take away the feast days and also the Sabbath days. फसह और जो है सबत के दिन को हटाकर अगर आप देखें, So Jesus would have walked at least 20,000 miles. 20,000 मील कम से कम यीशु चले होंगे। 32,000 kilometers. किलोमीटर में अगर देखें तो 32,000 किलोमीटर। And I want to tell you, out of the 36 miracles, 16 miracles happened on the roadside. और 36 जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किए, उसमें से 16 आश्चर्य कर्म जो है वो मार्ग के किनारे यीशु ने किए। Okay? Maybe so let us expect when you are traveling, Jesus would perform miracles. आप भी उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, आप जब यात्रा करते हैं, आपके द्वारा यात्रा में भी परमेश्वर चमत्कार या आश्चर्य कर्म कर I have सकता है। seen Jesus healing people when I was traveling. और मैंने अपनी यात्राओं में भी देखा कि यीशु ने कैसे लोगों को चंगाई So दिया। let us believe that God would perform miracles in our travels. तो हम भी ये विश्वास करें कि हमारी यात्राओं में भी यीशु जो है चंगाई दे सकता है। Third thing is Jesus performed miracles in the graveyard. और तीसरी बात, जगह जहां पर यीशु ने आश्चर्य कर्म किए हैं वो है शमशान घाट में। Okay? It's unimaginable place also Jesus performed a miracle. और जहां पर जो है उस लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगह पर यीशु ने जो है चमत्कार किए। The gathering, the demoniac who was having 6,000
evil spirits. Where was he healed? और जो गदरिया जगह में हम देखते हैं वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, 6000 की सेना जिसके अंदर समाई थी, उसको कहाँ चढ़ाई दिया था? It was in a graveyard. शमशान घाट में। Bible says he was in the tombs. बाइबल बताती है कि वो कब्रों में रहता था, कब्रिस्तान में। Where was Lazarus raised to life? लाजर को कहाँ पर जिलाया यीशु मसीह ने? Again graveyard. कब्रिस्तान में। You know, Jesus never attended a funeral service. आपको मैं बताऊं, यीशु मसीह ने कोई भी जो है ऐसे फ्यूनरल सर्विस में अटेंड नहीं किया, Because everywhere even he raised the people to क्योंकि life. जहाँ कहीं भी वो गए वो मरे वो उसने जिलाया है। Hallelujah. हालेलुया। That's why maybe Peter would have followed Jesus. Peter would have followed Jesus. और इसी से कह सकते हैं कि पतरस इसी रीति से वो यीशु के पीछे चला। So that's why when they called him to bury, give the funeral service for Dorcas, he raised her life. और दोरकास को जब वो जो है गाड़ने की सेवा के लिए बुलाया तो उसको वहां पर जिला दिया। Okay, so Jesus performed miracles in graveyards. और यीशु मसीह ने कब्रिस्तान में जो है आश्चर्य कर्म किए। So maybe let us expect God to perform such miracles. हम भी ऐसे आश्चर्य कर्मों को करने के ऐसी उम्मीद हम रखें। I'm not telling that you go and raise every dead person. You are going to a funeral house. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी जो मरे हुए लोगों के घर में अगर कहीं जाते हैं जहाँ मृत्यु हुई है तो वहां आप जाकर जिलाया करके। But then you have to receive the Rhema word from God to do that. और वो कार्य करने के लिए परमेश्वर से एक रेमा शब्द वचन को प्राप्त करना है। Then Jesus performed the miracles in the synagogue. और हम देखते हैं सिनेगॉग में, आराधनालयों में जो है यीशु मसीह ने चमत्कार किए। I was surprised today this week. Only 3 miracles Jesus performed in the synagogues. आराधनालय में हम देखते हैं यीशु ने केवल 3 ही आश्चर्य कर्म किए हैं। You मैं know- उससे आश्चर्य अचंभा हो रहा था, Because he would have gone on every Sabbath to the synagogue. क्योंकि हर एक जो है सबत के दिन वो आराधनालय में जाया करते थे। That means 50 to 150, maybe 180 the Sabbaths he would have gone to the synagogues. कम से कम 180 सबत तो वो गए होंगे अपने In 3.5 years. 3.5 साल की सेवा के अंदर। Okay, so but he did only 3 miracles are written there. 3 ही आश्चर्य कर्म जो है हम देखते हैं जो आराधनालय में किए। So what I want to share is, so let us also expect God would perform miracles when we come to the church, when we have prayer meetings, when we have gatherings. और मैं आपसे यही जोर देके कहना चाहता हूं, जब कभी आप कलीसिया में आते हैं या प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, उम्मीद रखें कि वहां पर आश्चर्य कर्म होंगे। And the 5th is, sure, as Emmanuel said, lakes or sea. Jesus performed miracles in the sea. और 5वीं जो जगह है वो है झील या समुद्र के किनारे यीशु ने किया। Because those days when they travel in the waters, they used to have boats, and Jesus performed miracles sitting in the boat. उन दिनों में वो झील में यात्रा करते थे तो वो नावों में यात्रा करते थे और यीशु ने उन नाव में बैठे हुए चमत्कार किए। He helped Peter to catch 2 boats load of fishes. और उसने पतरस को मदद किया कि 2 नाव भरकर मछली पकड़े। He calmed the stormy sea. उसने आंधी तूफान को थामा, He walked on the waters. वो पानी के ऊपर चला। And they had a big catch of fish after Jesus rose again, and we know 153 big fishes. और यीशु मसीह के जी उठने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने में मछली को पकड़ा। 153 जो है बड़ी मछलियों को उन्होंने पकड़ा। And in the 6th place is Jesus performed the miracles in the garden. और छठी जगह जो है यीशु ने जो आश्चर्य कर्म किए वो है वाटिका या उद्यान में। Gethsemane, the garden of Gethsemane, where he healed Malchus' cut ear. और गेत्सेमने की वाटिका में हम देखते हैं मलखस का जो कान कट गया था उसको उस चमत्कार को किया। And the 7th place is Jesus performed miracles in the desert. और 7वीं जगह जो यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए वो है मरुभूमि। Okay, both the multiplication, feeding 5,000 plus, feeding 4,000 plus, both of them happened in a desert place. 5,000 पुरुषों से भी ज्यादा लोगों को जो खिलाया और 4,000 पुरुषों को जब खिलाए, ये दोनों बातें आश्चर्य कर्म जो हुए वो मरुभूमि में हुए थे। Okay, so if it had been in the city, the disciples would have said, teacher, master, rabbi, come let us go and buy from the
hotels here, museums there. शहर में अगर होते तो चेले क्या बोलते? अरे रब्बी आओ हम जो है किसी होटल से हम खाना मंगा लेंगे। Okay, then the third area I want to share with you is how Jesus performed the miracles. और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कैसे यीशु ने आश्चर्य कर्म किए। Again, 7 ways Jesus used in healing miracles. और 7 बातें हम देखेंगे यीशु ने जो किए, जो कैसे चमत्कार किए। So you also have to do laying on of hands or touching. और आप भी कर सकते हैं। पहला है छूने के द्वारा, स्पर्श के द्वारा। Okay, so Jesus touched the leper. Jesus touched so many sick people. यीशु ने बहुत बीमारों को छुआ या जो है चमत्कार किए। Okay, first is touching. Second पहला है is स्पर्श करना, people touching him. और दूसरा लोगों ने यीशु को छुआ। We know the woman with bleeding, she touched आप जानते हैं the hem of the garment. 12 साल से रक्तस्राव होने वाली वो महिला ने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। Even in the mass healings, people pleaded to Jesus saying, Lord, at least allow us to touch you. और सामूहिक रीति से जब चंगाइयां हो रही थी तो लोग ये कह रहे थे कि आपको छूने की अनुमति दे करके ऐसा कह रहे थे। And the third thing is Jesus commanded. और तीसरी बात क्या है? यीशु ने आदेश देकर चंगाई दी। When he was casting out demons, जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, even when he was raising Lazarus, he said, Lazarus, come out. वो लाजर को जब जिलाया तो लाजर तू बाहर निकल आ करके आदेश दिया। And then the fourth way is by sending the word of healing. चौथा यीशु ने कैसे चंगाई दिया? वचन को भेजकर। Healing the nobleman's son. और वो जो धनाढ्य व्यक्ति है उसके बेटे को चंगाई देने। John chapter 4 verses 46 to 53. यूहन्ना 4 का 46 से लेकर 53 तक हम पढ़ते हैं। Centurion's servant. और वो जो सेंचुरियन का जो सेवक है उसके बारे में भी हम देखते हैं। Even the demoniac girl, when the mother came and pleaded with Jesus. और जो दुष्ट आत्मा ग्रसित जो बेटी थी उसकी माँ ने आकर यीशु से जो विनती किया उसके बारे में भी हम देखते हैं। The fifth was Jesus rebuked. और पांचवा तरीका जो यीशु ने अपनाया वो है डांट लगाकर। And sixth was Jesus spoke. और छठा है यीशु के मुख से बोलने पर। And apart from this, Jesus used one very strange way. Anybody wants to say what was that? इसके अलावा यीशु ने एक बिल्कुल विशिष्ट, एक अलग तरीके से एक चमत्कार किया था। कोई God has answered. Yes, spitting, by spitting. थूक लगाकर जो है वो मिट्टी में मिलाकर कैसे उसने आश्चर्य कर्म किया। Okay, so some of these things I have just shared with you, and my prayer and my desire is, and God's desire more than that is, that God wants to use every one of us. ये जो तरीके हैं जो यीशु ने अपनी सेवकाई में आश्चर्य कर्म करके किए, ऐसी इन तरीकों को मैंने इसलिए बांटा है कि प्रभु आपको और मुझको, हम में से हर एक को प्रभु ऐसे आश्चर्य कर्म करने में इस्तेमाल करे। Because it is His promise. क्योंकि यीशु ने वायदा दिया है। Because we will lay hands upon the sick and they shall recover. और क्या कहा है? तुम रोगियों के ऊपर हाथ रखोगे और वो चंगाई को प्राप्त करेंगे। And also we can see 7 different kinds of healings Jesus gave. और 7 अलग-अलग प्रकार की चंगाइयां जो यीशु ने की। With that I will finish. इसके साथ में मैं बंद करूंगा। You tell me what are the different kinds of sicknesses Jesus healed? अलग-अलग कौन-कौन से जो आश्चर्य कर्म में यीशु ने किए या बीमारी ठीक की है? Leprosy, कोढ़, bleeding, और रक्तस्राव होने वाली वो महिला को, fits. That is actually evil spirit it was. वो दुष्ट आत्मा ग्रसित को ठीक किया। Okay, first is fever. पहला है जो बुखार। Okay, Jesus rebuked the fever that Peter's mother-in-law was having. पतरस की सास को जो है जो बुखार आ गया था उसको यीशु ने डांटा And और second is किया। deathbed. They were on the deathbed. Nobleman's son, and like that, his centurion's servant, they were in the deathbed. और दूसरा जो है मृत्यु शैया में पड़े हुए व्यक्ति को कैसे यीशु ने जिलाया। Third is Jesus healed the lepers. तीसरा जो है कोढ़ियों को ठीक किया। Fourth, Jesus healed paralyzed people. और चौथा यीशु ने लकवा ग्रसित लोगों को ठीक किया। Fifth, Jesus healed bleeding. और पांचवा रक्तस्राव से जो बीमार महिला थी उसको ठीक किया। Sixth, Jesus healed deaf, dumb, blind. और छठा यीशु ने जो गूंगे थे, बहरे थे और जो अंधे थे उनको ठीक किया। And the seventh was he restored the severed ear of Malchus. सातवां जो मालकुस जो सेवक है उसके कान काट दिए थे उसको कैसे ठीक किया। So we have to just pray. Jesus said, whatsoever you shall ask in my name,
I will do it so that the Father will be glorified in the Son. यीशु ने क्या कहा है, जो कोई भी मेरे नाम से मांगेगा मैं उन काम को करूंगा और ताकि पिता परमेश्वर को महिमा मिल सके। Our job is only to pray. हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। Our job is only to lay hands. हमारा काम है सिर्फ लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना। Healing is God's job. चंगाई देना जो है ये परमेश्वर का काम है। So let us do our job आइए हम अपने काम को करें diligently और तत्पर होकर करें and sincerely, और ईमानदारी के साथ करें earnestly, और बड़े ही उत्सुकता के साथ करें, and Jesus would do it in the best way. और यीशु अपने तरीके से सबसे उत्तम तरीके से उसको वो पूरा करेगा। He is willing to do. वो तैयार है वो बड़े काम करने की। He wants to heal the people in Bhopal. वो भोपाल के लोगों को चंगा करना चाहता He है। wants to heal the people in Manipur. वो मणिपुर के लोगों को चंगाई देना चाहता He है। wants to heal the people who are injured in Gaza and also in Israel. और वो गाजा में या इजराइल में जो चोट खाए हुए लोग हैं, पीड़ित हैं, उनको वो चंगा करना चाहता You है। can pray from here. आप यहाँ से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Send your word of healing, Lord. आप अपने वो चंगाई देने वाले वचन को बोलें और घोषणा करें। Every day I pray, Lord, let them see a vision of Jesus coming and healing them. और हर दिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो लोग ऐसा दर्शन देखें कि यीशु तू आया और तूने चंगाई दिया। Because there is no medicine, they say, in Gaza. क्योंकि गाजा में कोई दवाई नहीं है करके बताते हैं। Okay, so let us pray, release God's healing power upon the nation. आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की वो चंगाई का हाथ परमेश्वर बढ़ाकर उस राष्ट्र को चंगा Remember, करे। don't think that you are an ordinary believer. आप कभी ये ना सोचे कि एक साधारण से विश्वासी आप हैं। Even an ordinary believer is sufficient for God to perform extraordinary things. और एक साधारण सा विश्वासी भी काफी है, यदि वो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उनके द्वारा असाधारण काम को करेगा। So from tonight, let us believe God will use you and me. आज रात से आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करेगा। Let us all lift up our hands. आइए अपने हाथों को आप ऊंचा उठाएं। Let us tell God, God, I dedicate my hands. परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मेरे हाथों के द्वारा कार्य कर। And wherever I lay my hands, let them be healed. मैं जहाँ कहीं भी लोगों के ऊपर हाथ रखूं, प्रार्थना करूं, वहाँ चंगाइयाँ होने Let पाए, miracles happen. आश्चर्य कर्म होने पाए, In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में होने पाए। Every power of the evil spirit be broken. हर एक शैतान की शक्तियां वो टूटने पाए। Every power of witchcraft be broken. हर एक जादू टोना का असर यीशु के नाम से टूटने पाए। Every power of sickness and cancer be broken in the name of हर Jesus. एक बीमारी की शक्तियां टूटने पाए, हर कैंसर ठीक होने पाए। All in the anointing of the Holy Spirit come upon everyone. प्रभु आपका वो चंगाई का अभिषेक, वो वरदान हर एक के ऊपर आने पाए। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा। Lord, we are so thankful and grateful to you प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं that you have chosen us to bring forth fruits. ताकि आपने हमको चुना है, अलग किया है ताकि हम आपके लिए फल लेकर आए। Help us to bring forth fruits. आपके लिए फल लाने के लिए आप मदद कीजिए। Use every one of us here. प्रभु हमें से हर एक को आप इस्तेमाल कीजिए। Even our children be used in a mighty way. हमारे बच्चों को भी सामर्थ के साथ इस्तेमाल कीजिए। Oh, we give you the glory and the honor. हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Let us all shout, Amen. आमीन। चिल्लाकर बोलें, आमीन। Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, the fellowship, the anointing, the power, the gifts of the Holy Spirit be upon us all, now and forevermore. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.